بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. صدق اللہ العظیم. انتہائی واجب القدر دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس موضوع پر پہلے کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، لیکن اس مرتبہ کچھ نئی باتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گی. دوستو بھائیوں، آج کے اس دور میں ہر طرف بیماریاں ہی بیماریاں. دنیا بھر میں 90% سے بھی زیادہ لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہر طرف بڑے بڑے ہسپتال نظر آئیں گے. بعض ہسپتالوں میں غضب کا رش لگا رہتا ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ تک نہیں ہوتی. ڈاکٹر اور حکیم حضرات ان بیماریوں کی مختلف وجوہات بتاتے ہیں، اور میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ شیطانی اثرات بھی ہے، کیونکہ جب میرے پاس مریض آتے ہیں، ان میں اکثر مریض اچانک آنکھوں سے بینائی کا جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، بے ہوشی جیسی کیفیت ہونا، زیادہ تر یہ عورتوں میں اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. جسم اور سر کا بھاری بھاری محسوس ہونا، کندھا بھاری رہنا، کبھی کبھی پیٹ میں درد، بڑا پیشاب کا بند ہو جانا، اچانک زبان کا بند ہو جانا. ایک نعت خواہ میرے پاس آئے، ان کی آواز کافی مہینوں سے خراب تھی. درجنوں کے حساب سے دوائیاں استعمال کر چکا تھا، ان کو دوائیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. جب ان کی میں نے تشخیص کی تو شیطانی اثرات آ رہے تھے. انہوں نے اپنا روحانی علاج کیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے ان کی آواز پہلے سے بھی بہتر ہو گئی. اس قسم کی اور بھی لاتعداد کارگزاریاں ہیں. کالا پیلا ارکان ہیپاٹائٹس ABC، کینسر ہو یا فالج ہو یا مرگی ہو، معدہ اور گردوں کے مسائل، جسم میں درد، ہر وقت بخار رہنا، اس قسم کے مریضوں کی جب تشخیص کرتا ہوں اکثر ان پر شیطانی اثرات آ رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر حضرات تو اپنے طریقے سے تشخیص کرتے ہیں. اب نہ ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے اس پر اثرات ہیں نہ مریض کو. مریض ساری زندگی ڈاکٹر اور اسپتال بدلتا رہتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. ایک بات یاد رکھے، اگر کوئی شخص کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے اور ساتھ ساتھ اس پر اثرات بھی ہیں تو یاد رکھیں پوری زندگی ڈاکٹر کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پوری زندگی ڈاکٹر کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ان اثرات کی کاٹ نہ ہو. ہاں، ڈاکٹر کے پاس جانے سے عارضی فائدہ تو ہوگا، مستقل ہمیشہ کے لیے ان بیماریوں سے جان نہیں چھوٹے گی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بیماری کے علاج کے لیے ہسپتال کا رخ کرتے ہیں، 10-15 سال تک علاج کراتے کراتے مختلف بیماری میں مبتلا ہو کر آخر کار ہسپتال سے ہی ان کی لاش آتی ہے. لاکھوں روپے، بعض ہسپتالوں میں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی فائدہ کم، نقصان زیادہ ہوتا ہے.
दोस्तों भाइयों, जब मरीज डॉक्टर के चक्कर लगा कर थक जाते हैं, फिर ऐसे फकीरों का रुख करते हैं दम करवाने के लिए, जिनके दम करने से मसाइल मजीद बिगड़ जाते हैं। याद रखिए, दम करवाने के लिए कोई हाफिज, आलिम या ऐसे आमिल को तलाश करे जो इस फन का माहिर हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, मरीज की बीमारी को समझ सकता हो, ठीक से तशखीस करना जानता हो, कोई खिलाफ शरा काम न करता हो। तो हर मरीज अपनी तशखीस जरूर करवाएं, कहीं वो बद असरात का शिकार तो नहीं। अगर असरात हैं जल्दी उनकी काट करवाएं, इसमें देर बिल्कुल मत कीजिए। दोनों तरह के इलाज करवाएं, डॉक्टर से भी इलाज जारी रखें और रूहानी तरीके इलाज भी साथ साथ कराते रहें। हमारे असातिज़ा के पास ऐसे ऐसे मरीज लाए जाते थे जो गुज़िश्ता 10 साल से डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे। जब असातिज़ा तशखीस फरमाते तो पता चलता इन पर शैतानी असरात हैं। जब इसकी काट करते फिर चंद महीनों में अल्लाह ताला ने उन मरीजों को शिफा दी। जरूरी नहीं कि असरात जादू के हों, बल्कि नजर बद जिन्नाती असरात भी हो सकते हैं। जिन्नाती असरात से बचने के लिए एक काम ये करें कि फराज के एहतमाम के साथ साथ सुबह शाम की दुआएं और सोते वक्त की दुआओं का, खासकर बैतुल खला जाने की दुआ जरूर पढ़ा करें, क्योंकि शैतान हर वक्त मौके की तलाश में होता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो हमला आवर हो जाता है। शैतान को जैसे ही मौका मिलता है वो हमले कर देता है इंसान पर। यही वजह है कि अक्सर दीनदार लोग बाकी तमाम मसनून अमाल का एहतमाम करते हैं, मगर बैतुल खला जाने की दुआ भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो भी इन जिन्नाती असरात का शिकार हो जाते हैं। जिन्नाती असरात फौरन हर इंसान नहीं जान सकता। जैसे जैसे असरात पुराने होते जाते हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। चंद और अलामात का यहाँ तज़किरा करूंगा। मुख्तलिफ आमिलीन ने अपने तजर्बात की बुनियाद पर अपनी किताबों में जिक्र फरमाया है, वो भी आपके सामने मैं पेश करता हूं। बाज मर्तबा मियाँ बीवी के दरमियान नफरत पैदा करना, हर वक्त आपस में लड़ते रहना, छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी लड़ाइयां, तलाक तक जो है नौबत पहुंच जाए। यानी जादू के जरिए मियाँ बीवी को में नफरत पैदा कर सकते हैं, इनमें लड़ाई पैदा कर सकते हैं, और चलते चलते बात जो है ना तलाक तक जा पहुंचती है। बाद में सर पकड़ कर बेड़े आते हैं कि हाय ये क्या हो गया। तो ये हालात आने से पहले किसी माहिर मुआलिज से राब्ता करें। बाद मर्तबा किसी पर ऐसा जादू किया जाता है कि वो शख्स हर जगह खुश रहता है, लेकिन अपने घर पर आते ही दिल उदास हो जाता है, बात बात पर लड़ पड़ता है, घर में बिल्कुल दिल नहीं लगता। और बाद मर्तबा तो ऐसा जादू किया जाता है कि इंसान इतना सुस्त हो जाता है कि घर से बाहर ही निकलने काम काज का दिल ही नहीं लगता। बाद मर्तबा खावन पर जादू किया जाता है, वो बीवी से नफरत करने लगता है। बाद मर्तबा बीवी पर ऐसा जादू किया जाता है कि अपने खावन से नफरत करने लगती है। कुछ लोग किसी से इंतकाम लेने के लिए जादू के जरिए बीमारियां मुसल्लत कर देते हैं। कभी सर में तकलीफ, कभी घुटनों में तकलीफ, कभी गुर्दों में तकलीफ, कभी मैदे में दर्द। अक्सर औकात बीमारी को डॉक्टर के यानी अक्सर औकात बीमारी जो है ना डॉक्टर को इसकी समझ में नहीं आता। यानी बीमारी को डॉक्टर भी अक्सर औकात समझ नहीं पाते, और मेडिकल टेस्ट में भी बीमारी जाहिर नहीं हो रही होती। बाद मर्तबा बीमारी किसी शख्स के बजाय पूरे घर पर मुसल्लत कर देते हैं। घर में कभी कोई बीमार है, कभी कोई, एक बिस्तर से उठता ही नहीं कि दूसरा लग जाता है। कभी रिश्तों की बंदिश का मसला है, तालीम याफ्ता है, उम्र भी मुनासिब है, रिश्ते अव्वल तो आते हैं, और कभी कभार रिश्ते बहुत आते हैं मगर देख कर चले जाते हैं, रिश्ता नहीं हो पाता। औलाद की बंदिश, मियाँ बीवी दोनों की रिपोर्टें सही हैं
डॉक्टर का कहना है कि कोई मसला नहीं है, सब कुछ क्लियर है, उसके बावजूद औलाद नहीं होती या बच्चे पेट पे ही मर जाते हैं। तो ये सारी बातें जो है हवाई नहीं है, अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये बातें हमारे असातिज़ा ने अपनी किताबों में लिखी हैं। कुछ चीजें तो हमारे दोस्तों में और हमारे तजर्बे में भी आई हैं। कारोबार की बंदिश, दुकान है तो दुकान नहीं चलती, मुलाजमत नहीं मिलती, आमदन में बेबरकती है। हमारे उस्ताद मोहतरम के पास एक शख्स को लाया गया। वो शख्स पूरे लाहौर में, लाहौर के जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, जो अमीर तरीन लोग हैं, उनमें से एक थे। तो उनको जब हमारे उस्ताद मोहतरम के पास लाया गया तो उन्होंने फरमाया कि मेरे पास इतनी दौलत थी कि मुझे एक मर्तबा पेट में मामूली दर्द हुआ तो उसका मायना 55 मुमालिक के मुख्तलिफ अस्पतालों में कराया, लेकिन आज इसकी हालत ये थी कि उस माजी के अमीर तरीन शख्स की बेटियां घर जा जाकर कपड़े मांगती फिरती हैं कि अपने कपड़े हमसे सिलवाएं, हम मजबूर हैं। ठीक है ना? और कभी कभार ऐसा भी जादू किया जाता है, जवान लड़कों लड़कियों पर हसद और जलन की वजह से ऐसा जादू किया जाता है कि उनकी शक्लें बिगड़ जाती हैं। उस्ताद मोहतरम अल्लामा अरशद हसन साकिब साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरे पास एक ऐसी बच्ची को लेकर आए जिनकी आंखों का अंदर का हिस्सा बाहर निकल आता था। इन पर इस तरह का जादू किया गया था, जब वो किताब की तरफ देखती पढ़ने के लिए उनकी हालत ये होती कि स्कूल में तमाम बच्चे उनकी आंख की तरफ देखकर डर जाते थे। कोई भी बच्चा उनके साथ बैठने को तैयार न होता। आखिर स्कूल वालों ने उसके वालिदैन को बुलाकर कहा कि हम आपकी बच्ची को अपने स्कूल में नहीं रख सकते। मजबूरन वालिदैन कई जगह इसका इलाज करवाते रहे, कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार हमारे जो उस्ताद मोहतरम अल्लामा अरशद साकिब साहब फरमाते हैं कि इस बच्ची को मेरे पास लेकर आए, उस बच्ची का इलाज किया। उस बच्ची के इलाज में 3 माह लगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल सेहतयाब हो गई। आज वो ही बच्ची MCS करके पेशावर में अपना स्कूल चला रही है। और बाज मर्तबा दुकान पर ऐसा जादू किया जाता है कि सारा दिन वो बेचारा बैठा रहता है कि खरीदार नहीं आता। दुकान हो, फैक्ट्री हो या स्कूल हो, तो इन पर जो है इस तरह के बंदिशें लगा जाते हैं कि वहां पे या तो लोग आते नहीं हैं या आते हैं तो काम किए बगैर चले जाते हैं। दुकान फैक्ट्री पर ऐसी बंदिश लगाते हैं कि मशीनें खराब हो रही हैं, फैक्ट्री और दुकान चलाने का बिल्कुल दिल न करता हो, हर वक्त सुस्ती और नींद का गलबा रहता हो। ये भी जादू की अलामत में से एक अलामत है। एक मर्द जिस्मानी एतबार से मुकम्मल तंदुरुस्त है, लेकिन जब अपनी घरवाली के पास जाता है हक अदा करने के लिए, अपने आप को मुकम्मल नकारा पाता है। ऐसे लातादाद वाक़यात पेश आते हैं। बाज़ मर्तबा अलमारी में रखे कपड़े फट जाते हैं या जल जाते हैं, बसा औकात गायब भी हो जाते हैं, अलमारी से पैसे गायब हो जाते हैं। बगैर चोट और जख्म के जिस्म पर कट या नील के निशानात लग जाते हैं। कंधों और सर पर वजन महसूस करना। बाज़ मर्तबा जादू के जरिए बदन पर, कपड़ों या घर के फर्श या दीवारों पर खून के छींटे गिराए जाते हैं। बाज़ मर्तबा खून के बजाय पानी के छींटे पड़ते हैं। सख्त सर्दी के मौसम में सोने के बाद जब सुबह बेदार हो जाता है तो अपने आप को गीला पाता है। तो ऐसे मरीज फौरन किसी माहिर से राब्ता करे। कभी कभार ख्वाब में जानवरों का नजर आ जाना या मुर्दों का नजर आ जाना, ये भी जादू की अलामत में से एक अलामत है। या आपके घर में पत्थर आते हों या घर की छत या दीवार बजते हों, अगर ये अलामत किसी में पाए जाते हों, मुनासिब यही है कि किसी दीनदार आमिल से पहले तशखीस करवाएं जो इस फन का माहिर हो। बाज लोग छोटी छोटी बातों पर वहम का शिकार हो जाते हैं।
ذرا سا سر میں درد ہوا یا دکان پہ 1-2 دن خریدار نہ آئے، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے۔ بعض چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہم کا شکار ہوتے ہیں تو کسی دیندار عامل کے پاس جانے کے بجائے بے دین سفلی اور کالا علم گندے قسم کے ننگے پیٹ ڈبے فقیر کے پاس جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایسے لوگوں سے علاج کروانے سے ایمان سے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسوں کے پاس جانے سے پیسہ، وقت، بعض مرتبہ خواتین اپنی عزت برباد کراتے ہیں۔ یہ جتنی بھی علامات اور نشانیاں جو بتائی گئی ہیں، ان میں سے 1 یا 2 یا 3 یا بہت ساری علامات ہوں تو ضرور اپنی تشخیص کروائیں، اس میں دیر بالکل مت کریں۔ جو نمبر دیا گیا ہے اسی نمبر پر واٹس اپ کر دیں۔ بعض ساتھی فون کرتے ہیں، مصروفیت کی وجہ سے ان کا فون نہیں سنا جا سکتا، تو بہتر طریقہ یہی ہے اب وہ فون کریں اور نہ ہی وائس کال کریں نہ ویڈیو کال کریں، صرف اور صرف واٹس ایپ پر میسیج کر دیں، واٹس ایپ پر ہی ایک وائس کر دیں، جیسے کہ وقت ملے گا انشاءاللہ ان کو جواب دے دیا جائے گا۔ تو ساتھ ہی اس بات کا ضرور خیال رکھیں